یہ والے بھی تویز ہیں، یہ سبز دھاگے کے ساتھ بندے ہیں. دزا کے لیے یہ کس چیز کے لیے؟ دزا کے لیے ذرا دکھا دیں. سخت تین بزاگے، ایک بزاگے تین، ایک کاکا سے کا بیٹا ہے. اچھا دوسرا بیٹا کاکا سے بھی، وہ تیسرا چھوٹا ہے، ٹھیک. نواسا ہے. میں نے اپنے موبائل پر مزار شیخ رحمکار کاکا کی لوکیشن تو لگا لی ہے. امید ہے گوگل بابا جو ہے مجھے صحیح رہنمائی کریں گے. یہ پھٹک آ گیا. اب میں اس شیخ رحمکار کے مزار کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہوں. اب یہ چوک آ گیا تو چوک میں یہ راستے ادھر گوگل بابا جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں. یہاں پر پھر دھوکہ دے گیا. چلے کسی سے پوچھ لیتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہاں دھوکہ دے گیا. مزار شیخ رحمکار جنہیں حضرت کاکا صاحب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. ان کا مزار مبارک لاہور کی طرف سے ہیں. نشہرہ سے 4 کلومیٹر پہلے آپ کے بائیں ہاتھ ایک سڑک جاتی ہے، وہاں آگے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے. اور تھوڑا سا آگے جائیں کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں بلکہ اس آبادی کا نام جہاں یہ مزار ہے اسے قاضی آباد بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے چوتھے میر تھے، ان کی قبر مبارک اور ان کا گاؤں بھی نہیں. آپ کو میں پہلے تعارف کراتا ہوں شیخ رحمکار کاکا صاحب کا، اس کے بعد پھر ان کے مزار کے لیے. شیخ رحمکار 25 دسمبر 1573 کنڈڑا کھیل کوسار نشہرہ میں پیدا ہوئے. آپ کا اسم گرامی سید تذکیر، لقب رحمکار اور معروف کاکا صاحب. والد کا نام شیخ بہادر المعروف ابک بابا، دادا کا نام مست بابا اور پردادا کا نام غالب بابا. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمکار رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 23 واسطوں سے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور ان کی اولاد عرفی نام کی نسبت سے کاکا خیر کہلاتا ہے. اگر بات کریں ان کی سیرت و کردار کی تو آپ صائم الدہر، شب بیدار، انتہائی راست گفتار، متواضع طبیعت، منکسر المزاج، سخی، صاحب قلب سلیم، مخلوق خدا پر شفقت کرنے والے، ہر وارد و صادر پر رحم دلی کرنے والے ہیں. ہر ایک مرید پر توجہ باطنی فرما کر عشق و محبت الہی سے سرشار فرمائے. صاحب مقامات قطبیہ و مقامات قدسیہ آپ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ کاکا صاحب علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا مکمل علم رکھتے تھے. آپ کے 5 فرزند تھے: آزاد گل، محمد گل، خلیل گل، عبد الحلیم اور نجم الدین. اگر آپ بات کریں آپ کی وفات سے پہلے 1 سال تک سخت بیمار رہے، مگر باوجود بیمار رہنے کے آپ نے نماز قضا نہیں کی. اکثر اوقات قیام کی طاقت نہ رکھتے تو 2 آدمی آپ کے بازو پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیتے. پھر آپ نماز کی تکمیل کر کے اپنے معمولات کو آخری وقت تک پورا کیا. 24 رجب 1063 ہجری جمعہ کے دن 80 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان پر اپنی لاتعداد رحمت کرے. اللہ پاک ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی پیروی کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے توفیق عطا فرمائے. آپ جب بھی کسی بھی پہاڑی علاقے میں آئیں، بلوچستان کی طرف چل جائیں یا آپ خیبر پختونخوا کی طرف آ جائیں تو آپ کو اکثر بازاروں میں یا روڈ پر مرد ہی ملیں گے، عورتیں کم ہی ملیں گی. جو عورت بھی ہوگی ان میں سے اکثریت نے پردے کا اہتمام کیا ہوگا، جبکہ دوسرے صوبوں میں یہ اس چیز کا زیادہ توجہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ بابا جی خوشحال خان خٹک رحمۃ اللہ علیہ
जिस दुनिया जंगजू भी कहती है, सूफी शायर भी कहती है, उनका एक शेर मेरे ज़हन में आ गया जिसका मफ़हूम ये है कि जान जाती है तो जाए लेकिन लंघ ना जाए। यानी पर्दा जो है ना वो बिल्कुल जो है ना अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेहमान नवाजी, पर्दे का एहतमाम, नमाज की पाबंदी, शरीयत पर अमल करना काफ़ी हद तक आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। और फिर दूसरी बात, यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, जफाकश, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जिस तरह हमारे पंजाब में भिखारियों की एक तवील लाइन लगी होती है, स्टेशन पे चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, हत्ता कि बाज़ारों और गलियों में भी आपको हर जगह भिखारी मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं कोई भी पठान भाई मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सामने बोर्ड है काजी हुसैन अहमद की कब्र मुबारक का, तो उम्मीद है कि रहमान काका का भी मज़ार करीबी है। काजी हुसैन अहमद आखिरी गानगा मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू माअहदु वल्लाहु अलैहि। मोमिनों में वो जवान मर्द हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह से किए थे इन्हें सच्चा कर दिया। बेशक अल्लाह पाक काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह की कब्र पर कोई करे। मर्द मुजाहिद थे, इस्लाम के लिए उनकी बहुत सारी खिदमत हैं। मैं जिनके बोर्ड से आगे निकल गया, बोर्ड पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि चलें इधर खड़े होकर आपको बोर्ड भी दिखा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रह जाए कि काजी हुसैन अहमद साहब जो थे उनका कब्र मुबारक भी इसी रास्ते पर है। मैंने इस इलाके में आकर अक्सर ये देखा है कि अगर पहाड़ ऊंचे हैं तो इन लोगों के दिल भी पहाड़ों की तरह बुलंद है। किसी से भी रास्ता पूछ लें, कोई बंदा आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा, हमेशा प्यार से मोहब्बत के साथ दुरुस्त सिमत आपको बता देगा ताकि आपके लिए अपनी मंजिल पर पहुंचने में आसानी हो। तो मैं पहुंच गया हूं मज़ार काका साहब के नीचे हाथा में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पहुंच गया हूँ मज़ार काका साहब। इस तरफ इसकी ये मस्जिद है और ये ऊपर फ्लैग अपनी शान और शौकत के साथ लहला रहा है। और एक ये इस तरफ 3 कोनों वाला और इधर 3 कोनों वाले 2 रंग और इधर 4 रंग। और ये इसकी मेन इंट्रेस्ट है। तारीख दाश है ये कमर रमज़ानुल मुबारक 983 हिजरी और वफ़ात है इनकी 24 रजब बरोजुमा 1063। ये मेन इंट्रेस्ट है। इसके दाएं हाथ पे ये मस्जिद का आता है और आगे जाके फिर बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी दोनों तरफ देखें तो ये फिर कब्रिस्तान है। और इसके आगे फिर सीधे ये इस तरफ लिखा है कि रोज़ा मुबारक का सा। मैं पहुंच गया हूँ इधर ज़ियारत गाह हज़रत काका साहिब रहमतुल्लाह अलैह। तो इधर अभी तो रोशनी क्योंकि सुबह का टाइम है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है और बहुत ही अरसा के साथ जो है ना ये तमीर किया गया। और इसके चारों तरफ देखें तो ये इसकी महराबें ना तो पुरानी तर्ज का वही है, मकबरे जिस तरह होते हैं, मज़ार जिस तरह होते हैं, पुराने तारीखी मुकाम पे जहाँ भी जाएं ऐसे ही आपको डूब और चारदीवारी मिलेगी। लेकिन ये टाइल लगाकर इसको मज़ीद खूबसूरत कर दिया गया है ताकि देखने वाले को दिल खुश हो। बाज़ मज़ारों पर या पीरों के पास एक ही मर्ज़ का तवीज़, लेकिन यहाँ पर हर मर्ज़ का तवीज़ वो भी थोके हिसाब से। ये वाले भी तवीज़ हैं, ये सब्ज़ धागे के साथ बंधे हैं। दज़ा के लिए ये किस चीज़ के लिए? दज़ा के लिए जी जदात वाला
तो बच्चा चेक चेक करता है बस। अच्छा अच्छा ये बस एक तावीज़ है, एक साथ तावीज़ है। अच्छा अच्छा एक तावीज़ है, तीन चेहरों साख्त है, जरा दिखा दें। साख्त है। अच्छा ये साख्त है तावीज़ है काका सबका। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी जी माशाल्लाह। असल नाम इनका शेख रहमकार रहमतुल्लाह अलैह साहब था। आगे फिर अल-मरूफ काका साहब के साथ जो है ना, वो साहब कस्तीर गुल काका सबका। हाँ जी हाँ जी कस्तीर, हाँ जी हाँ जी। वो लेकिन वो ज़्यादा रहमकार काका साहब थे। काका साहब। ये देखें ना, जिस तरह बैंक वालों ने नोटों की दत्तियां बना के रखी होती हैं, ढेर लगा के रखा होता है, इसी तरह इन्होंने भी दत्तियां बना के रखी हैं और ये नमक का भी ढेर लगाया हुआ है। बाबा जी काट रहे हैं तवीज़ों को और ये साहब जो हैं ये तवीज़ों की दत्तियां बना रहे हैं। माशाल्लाह, हर किस्म का तवीज़, कोई खाली ना जाए नजराना दिए बगैर। वो काका साहब का बेटा है। बात सुनो, ये दूसरा बेजार काका साहब है, वो तीसरा बेजार दवा साहब है। अच्छा 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 तीन बेजार है, एक बेजार है तीन, एक ये काका साहब का बेटा है। अच्छा वो दूसरा बेजार काका साहब है, वो तीसरा छोटा है ठीक। दवा साहब है। मैं यही समझा कि शायद ये पूरा इनका जो है काका साहब का ही है, तो ये फरमा रहे हैं कि ये काका साहब के बेटे का है। इस तरफ पहले दरवाजे से एंटर हो तो काका साहब के बेटे का, फिर आगे जो साथ ही है ना, हाँ ये मेरे इस तरफ इधर काका साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इधर वाली जो कब्र है ये उनके नवासे की है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ ना इसको देखे, सफाई सुथराई का भी काफ़ी हद तक ख्याल रखा गया है। बहुत ही साफ़ सुथरा है यहाँ बना हुआ है। ज़ौजा हज़रत शेख रहमकार काका साहब, द काका खिलो मारे, ये उनकी काका साहब की अहलिया मोहतरमा का। इधर काका साहब की अहलिया और उनके अहले खाना के दीगर अफराद की कब्रें मौजूद है। करे जन्नत में आला मुकाम दे। और इस तरफ है मियाँ मुकर्रम शाह काका खैर। अल्लाह पाक के इस कब्रिस्तान में जितने भी मदफून हैं, छोटे हैं बड़े हैं, गुनाहगार हैं या तेरे बरगज़ीदा हैं, गलतियां हो गई हैं या मकबूल हो गई। गलतियां हुई फिर भी तेरे बंदे थे, अगर पारसा ज़िंदगी गुजारी फिर भी तेरे बंदे थे। अल्लाह नेकों के दर्जात बुलंद फरमा, और जो जिनसे ख़ता हो चुकी उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दें, क्योंकि वो तेरे बंदे थे, उनके दर्जात बुलंद फरमा दें। तू ही रहम कर के, तू ही बख्शना। जितने भी इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सब पे अपना खुसूसी रहम करम करते। सल्लल्लाहु अलैहि